Just let me know. Is this screen is visible to everyone? Is this visible? Yes, sir. Okay. Okay. So we'll continue our last lecture. Okay. So few MCQs are remaining. So that will complete first, and then we'll go to the next directional derivative. So we'll try to cover these two topics today only. Okay. So next question is this. We have given u, which is equal to x plus y plus z, v is equal to x plus y, w equal to this, and we have to find this. ये क्या है? U dot u bar dot v bar cross w bar. What is this? Yes, anyone? What is this? Bolo. U bar dot v bar cross w bar. Yes. Yes. Scalar triple product. Yes. Very good. It is a scalar triple product. ठीक है? Scalar triple product. ठीक, तो क्वेश्चन सिंपल है. ट्रिपल प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, and we have given u v w. Just calculate del u, del v, and del w. So we'll quickly do that. So what is the value of del u? Anyone? How you calculate del u? Del phi. It's a grad phi. It is similar to del phi. Del operated on scalar. Okay, so u is a scalar, v is a scalar, w is a scalar. So what is the definition of del u? Tell me directly. Anyone? Other students, please speak in the lecture. आपके लिए MCQ ले रहा हूँ, so you have to answer these questions. Yes. What is del? Just 1 minute. Let me increase the volume. Okay. हाँ. So definition क्या है? क्या करना है आपको आगे? क्या लिखना है? Anyone? What is your definition of del u, del phi? What is your definition? क्या करना है आपको? बस करना है क्या है? Just differentiate u with respect to x. Okay. This is the definition of del phi. Phi x, I bar, phi y, I j. d phi by dx plus j d phi by dy plus z Okay, very good. k d phi by dz. So simply remember del phi, del u definition कैसे याद रखनी है? u को x से डिफरेंशिएट करो, I बार u को y से डिफरेंशिएट करो, j बार u को z डिफरेंशिएट करो, k बार. So that gives you so u का with respect to x is just I bar, with respect to y is 1, with respect to z is 1, so k bar for del u. Similarly calculate now v. ठीक है, अभी मैं डायरेक्ट करने वाला. So differentiate v with respect to x, that is 1, v is also 1, and there is so z term is absent here, so that derivative is 0. So 0 into k, or simply you can write here 0. ठीक है, this is the value of del v bar. ठीक है, and now third is del w bar. Yeah, so this is with respect to x. So what is that? Now differentiate this with respect to x, so that is minus 2x. Minus 2z. Yes. I. Next with respect to y, it is minus 2y. So minus 2z I have. हाँ. With respect to x is minus 2z, with respect to y is minus 2z. हाँ. Okay, am I correct now? With respect to x is minus 2z, with respect to y is okay, minus 2 j. And then with respect to z, it is I think minus 2x minus 2y. Okay, or okay. And let me erase this. And minus 2z. There are three terms. Okay, यहाँ पे भी z है, यहाँ पे भी z और यहाँ पे भी z है. So the next is minus 2z and into k bar. Okay, and now just calculate the scalar triple product of this. So Sir, only minus 2z, no? 2x and 2x and y are constant, so it will be 0. Okay. So while differentiating with respect to z, others are constant. So that constant we have to consider here, ना? Okay. अगर हाँ कुछ मिस्टेक है तो बोलो. So del u dot with del v cross with del w. Yeah. So this is equal to, it's a determinant where in first row consider the coefficient of first vector, which is 1, 1, 1. In second row coefficient of second, that is again 1, 1, 0.
एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस टू जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज माइनस टू जेड with respect to y is again minus 2z and with respect to z is minus 2x minus 2y minus 2z. So just complete this determinant and that will be your final answer. Okay, so which option is correct? Anyone? Which option is correct? किया आपने ये? Do it and tell me which option is correct. Do it quickly. आप रफ शीट लेके बैठो क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे ना रेड्यूसेस योर टाइम. ये 1 आवर आपको वेस्ट नहीं करना है, मैं आपको बार बार वही बोल रहा हूँ. ठीक है, वी आर टेकिंग MCQs फॉर योर प्रैक्टिस ओनली. सो सिट विद वन पेपर वन रफ पेपर पेन एंड ट्राई टू सॉल्व दिस एग्जाम्पल. मैं ऊपर का करो, आप नीचे का सॉल्व करके रखो क्योंकि मुझे पता है कुछ स्टूडेंट को ये जल्दी हो जाएगा. दे कैन इजीली गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो डू इट क्विकली, डोंट वेस्ट योर टाइम. यस, एनीवन? विच ऑप्शन इज करेक्ट? जस्ट कंप्लीट दिस. So 1 into, so minus 2x minus 2y minus 2z. Okay, so this is 0 है ना. 1 into this, so this minus 0. Now minus minus again this whole term minus 0. Okay, this minus this. ठीक है, and now last में plus this minus 2z plus 2z. तो ये कैंसिल हो जाएगा. 0 आ रहा है क्या? चेक करो, ये पूरा टर्म इससे कैंसिल हो रहा है. नहीं, हाँ कैंसिल हो रहा है ना, प्लस और माइनस का डिफरेंस है. ठीक है, सो आंसर इज 0. यू कैन चेक. 0. Now next question is unit vector in the direction of normal to the surface. So we have given one surface. We always denote a scalar value. So that will be x square plus y square plus z square minus 9 equal to 0 है ना. हमेशा राइट साइड में 0 सेट करके लिखो. Okay, and now we have to calculate a normal vector to this surface. So can you tell me what is that? Normal vector to surface phi. Yes, what is the definition of this? How you calculate a normal vector to any surface phi? किसी भी सरफेस को नॉर्मल आप कैसे कैलकुलेट करते हो? यस यस सर आर अपॉन आर बार तो उसका मॉड्यूलस लेंगे सर, तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. नो, आर बार इज अ पोजिशन वेक्टर. सो दैट आर बार आप कब लिखते हो? जब आपके पास x पॉइंट है, जब आपके पास y पॉइंट है, जब आपके पास z पॉइंट है. इन दैट केस ओनली यू हैव टू राइट द आर बार विच इज अ पोजिशन वेक्टर. हियर आई वांट अ नॉर्मल. डेल फाई. वेरी गुड. ओके, ये याद रखो क्योंकि ये सबसे पूरा टॉपिक ही इस पे डिपेंड. आपको आगे भी समझ में आएगा. डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज अगेन टोटली डिपेंड ऑन डेल फाई. सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डेल फाई. डेल फाई गिव्स यू नॉर्मल टू द सरफेस फाई. मतलब क्या होता है कि अगर ये आपका फाई सरफेस है जिसका इक्वेशन ये आ रहा है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ फाई. ठीक है, सो एनी वेक्टर विच इज नॉर्मल टू दिस सरफेस दैट बिकम डेल फाई. ठीक है, ये याद रखो. दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट. सो जस्ट कैलकुलेट डेल फाई हियर. सो now we all know how to calculate del phi. करना क्या, जो phi आपका इक्वेशन उसको x से डिफरेंशिएट करो. So you will get 2x into I bar. Then differentiate that with respect to y. You will get 2y into j bar. Differentiate with respect to z. That is 2z into k bar. And now just calculate this del phi. So because here we want that normal vector at a point 1, 2, 2. So just calculate del phi at point 1, 2, 2. So that will be I bar plus 4j bar plus 4k bar. Okay, and we want a unit vector. Yeah. So what is that? So unit vector in the direction of this. So which option is correct? So यहाँ पे कर देता हूँ मैं. So what is that unit vector? Yes. Del phi cap आपको कैलकुलेट करनी है एट दिस पॉइंट. सो विच इज द सेम वेक्टर आई बार जे बार के बार एंड डिवाइडेड बाय, आई थिंक ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है ना सर. 2x into 1 2 है तो सर 2 4 4 सर ऑप्शन ही 2 है सर. ऑप्शन नहीं आ रहा सर. नाउ यू कैन टेक हियर 2 स्क्वायर plus 4 square plus 4 square and if you cancel this you will get this simplification क्योंकि 2 कॉमन आके नीचे से कैंसिल हो जाएगा. ओके,
and that become 1/3 into I bar 2j bar plus 2k bar. या और अभी इस टॉपिक के ना बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने कितने लिए मुझे पता नहीं. या सो नेक्स्ट यू कैन ऑल्सो सी यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस सरफेस. ठीक है, तो सेम लॉजिक है. फाई कंसिडर करो, दैट इज एक्स वाई माइनस जेड स्क्वायर. देन कैलकुलेट यूनिट then calculate normal vector which is del phi, है ना, and calculate at point 1 1 1. So just calculate this vector at 1 1 1 and then convert this into a unit vector, means मॉड्यूलस से डिवाइड करो. ठीक है, so you can easily solve this example. तो ये आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ. हाँ, next vector, next question. Unit vector in the direction tangent to this curve. Yes, now tell me क्या क्या करना है. And here we have given x equal to sin t, y equal to cos t, z equal to t. I want a tangent to this curve. So this is the equation of curve, you can say. And I want a tangent to this curve at a point t equal to pi by 4. Means what? Can anyone tell me what is the equation of this curve? What is the equation of this curve? Huh? Yes? If points are given, how you can write its equation? That is r bar. ये आपको मैंने कल एक्सप्लेन किया था ना कि दैट if we know one of the point in the curve, okay, which is in the parametric form in a single variable में यहाँ पे define किया, then how you write equation of that curve? So that equation is r bar is equal to x into I bar, y into j bar and z into k bar. So this is equal to sin t into I bar plus cos t into j bar plus t into k bar. So this become your r bar. But आपको क्या कैलकुलेट करना है? Here we want a tangent vector at t equal to pi by 4. Means what? What is tangent vector? Yes? Derivative. Derivative. Okay, so this is nothing but t1. Denote this by t, you can say denote this vector by t. So t at pi by 4 आपको कैलकुलेट करना है. Okay, that is nothing but a derivative. This is nothing but dr bar by dt. कैलकुलेट करो at t equal to pi by 4. ठीक है, तो अभी मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ. साइन टी का डेरिवेटिव क्या आता है? cos t, एंड cos pi by 4 आपको कैलकुलेट करना है. ठीक है, नेक्स्ट cos t का डेरिवेटिव क्या आता है? माइनस साइन टी. सो माइनस साइन pi by 4 आपको कैलकुलेट करना है. लास्ट में क्या है? t का डेरिवेटिव आता है 1, सो प्लस k बार. सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच ऑप्शन इज करेक्ट? हियर आल्सो आई वांट यूनिट वेक्टर. तो आपको फिर से मॉड्यूलस से डिवाइड करना होगा. विच ऑप्शन इज करेक्ट? बोलो. यस, डू इट. करो कैलकुलेशन. व्हाट इज मॉड्यूलस वैल्यू ऑफ दिस? क्या है मॉड्यूलस वैल्यू? cos pi by 4 sin pi by 4 is what? Cos pi by 4 is cos pi by 4. Are you there with me or not? What is cos pi by 4? 1 by root 2. 1 by root 2. Then its square is 1 by 2. Okay, मैं लिख ही लेता हूँ यहाँ पे. So it is 1 by root 2 into I bar minus sin pi by 4. What is sin pi by 4? Yes. आप बोल ही नहीं रहे हो. And then Same, sir. हाँ, k bar. So which option is correct? Option C. Option C. Okay. अब बस मॉड्यूलस कैलकुलेट करो, which is under root of a square 1 by 2 again under root of a square plus 1, that is root 2 is the modulus value, and you have to divide this by root 2. ठीक है, सो दैट बिकम 1 by 2 माइनस 1 by 2 प्लस 1 by 2. ठीक है, ये यूनिट वेक्टर इसलिए उसमें चेंज होगा. ठीक है, सो दिस इज योर वेक्टर एंड द मॉड्यूलस वैल्यू, मॉड्यूलस ऑफ डी आर बार बाय डी टी में लिख लेता हूँ वैल्यू विच इज इक्वल टू रूट 2. ठीक है, सो यू कैन इजिली कन्वर्ट इट इनटू यूनिट वेक्टर. So unit vector along a line equally inclined with the coordinate axis. So tell me a vector
which is equally inclined with coordinate axis. बताइए, that vector is I bar plus J bar plus K bar, okay, which make equal angle. Okay, so direction ratios are 1 1 1. Simply direction ratios are 1 1 1. Okay, with which makes equal angle with x axis, with y axis, and with z axis. But I want a unit vector. Okay, so this is my say A bar. So what is your A cap? So which is 1 by root 3 into I bar plus J bar plus K bar. Okay, so option A is correct. So always remember a vector which is equally inclined with all three coordinate axes are I bar, J bar, K bar. Okay, it means direction ratios are 1, direction cosines are equally. आपने 11th 12th में भी देखा होगा. या simply it's a vector which passing through 1 1 1. It's a vector which passing through 1 1 1. So that is I bar, J bar, K bar. ठीक है. Now next, unit vector along this line. So first tell me, if this is the equation of line, what is a vector? What are the direction ratios of that? What is the direction ratios of this line? क्योंकि DRS आ जाता है तो वेक्टर इजीली समझ में आता है ना. ये जो कोएफिशिएंट है ये DRS ही है ना, बेसिकली डायरेक्शन रेशियोज ही है ना. हाँ, यस, टेल मी DRS ऑफ दिस गिवन इक्वेशन, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन लाइन. एनीवन? ये हो चुका है आपका M2 में. डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन, इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? 215. सो 215. ओके, दोज हु डोंट नो, स्पेशली डायरेक्ट सेकंड ईयर स्टूडेंट्स, इस फॉर्म में अगर आपके पास, ओके, मैं आपको एक इन जनरल स्टेटमेंट ही देता हूँ. x माइनस अल्फा अपॉन a विच इज इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन b विच इज इक्वल टू z माइनस गैमा अपॉन c. Okay, this is the general equation of straight line where this a b c, okay, where this a comma b comma c, these are called as direction ratios. ठीक है, तो अगर आपके पास डायरेक्शन रेशियोज आ जाते हैं तो वेक्टर क्या होता है? a इंटू आई बार, b इंटू जे बार, c इंटू के बार. देयरफॉर द वेक्टर a बार इज इक्वल टू 2 इंटू आई बार प्लस 1 इंटू जे बार प्लस 5 into k bar. Now just calculate a unit vector. ठीक है, that is a cap. So which is equal to 1 upon under root of this, under root of 4 plus 1 plus 25 and into this vector as it is 2i bar plus j bar plus 5k bar. So which option is correct? Which option is correct? This. ठीक है, 2 ये 2 j and 5. Now next is the angle between the surfaces. This is your one surface, this is your second surface, at point this. Okay, how you calculate the angle between these two surfaces? In general आप कैसे calculate करोगे, मुझे ये बोलो. How you find angle between two surfaces at intersection point? कैसे calculate करते हो आप in general angle between two surfaces? हाँ, so for this just calculate normal to this first surface. ये आपका first surface है which is x log z minus y square minus 1 equal to 0. This is your first surface. आपको करना क्या है? calculate a normal vector or normal vector to this surface phi at point 1 1 1. तो basically आपको calculate क्या करना है? del phi. Del phi gives you normal at point 1 1 1. ठीक है, ये आपका सेकंड सरफेस है साई विच इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस जेड प्लस 2. यहाँ पे भी आपको क्या करना है? हियर ऑल्सो फॉर दिस सेकंड सरफेस ऑल्सो कैलकुलेट नॉर्मल वेक्टर और नॉर्मल टू दिस सरफेस एट पॉइंट 1 1 1. तो बेसिकली आपने क्या किया है? दो सरफेस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट था 1 1, उस पॉइंट पे दोनों सरफेसेस के लिए आपने नॉर्मल वेक्टर कैलकुलेट किया. And whatever the angle is there between these two normal vector, that is your final angle, or that is the angle between two surfaces. So angle between two surfaces is nothing but angle between the normals at the point of intersection. So it is nothing but the angle between normals at point of intersection. ठीक है, बट यहाँ पे क्या हुआ है?
डेल फाई आपको ऑलरेडी उन्होंने कैलकुलेट करके दिया है, यहाँ पे भी आपको डेल साई उन्होंने कैलकुलेट करके दिया है, तो आपको डायरेक्टली वन वन पॉइंट पे ये कैलकुलेट करना है. तो व्हेन आई पुट x इज इक्वल टू 1 इन डेल फाई, log 1 बिकम 0, सो इट इज 0. व्हेन आई पुट y इक्वल टू 1 इट बिकम -2 j बार, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस k बार. दिस इज द नॉर्मल वेक्टर एट टू द सरफेस फाई, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली डेल फाई कैलकुलेट करके दिया है. यहाँ पे भी डेल साई उन्होंने कैलकुलेट करके दिया है, आपको बस 111 पॉइंट इसमें पुट करना है. सो दैट इज 2 इंटू आई बार प्लस j बार प्लस k बार. नाउ tell me how you find the angle between these two vectors. Anyone? How you find the angle between this vector and this vector? What is the formula? What is the formula? Angle between two vector. Huh? Bolo. What is the formula for angle between two vector? Yes. What is the formula for angle between two vector? A bar dot B bar upon mod A into mod B is Very equal good. to cos theta. So cos theta is equal to their dot product. जिन दो वेक्टर में आपको एंगल कैलकुलेट करना है उनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मॉडुलस का मल्टीप्लिकेशन, मॉडुलस ऑफ ए बार इनटू मॉडुलस ऑफ बी बार. ओके, सो जस्ट डू इट क्विकली. सो आई बार का कोएफिशिएंट यहाँ पे 0 है फर्स्ट में, सेकंड में 2 है. नेक्स्ट जे बार का कोएफिशिएंट यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 1 है. के बार का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, डिवाइडेड बाय मॉडुलस का प्रोडक्ट. फर्स्ट का मॉडुलस क्या आएगा, 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय सेकंड का मॉडुलस क्या आएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. सो व्हाट इज दैट फाइनल वैल्यू? सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? सो -2 प्लस 1 इज -1, है ना. सो -1 अपॉन व्हाट? सो दिस इज 4 into 1 is 5. Option B. Okay, 5 into 4 plus 1 plus 1, 6. Option? Which option B. is correct? B. हाँ, B ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, यहाँ पे 2 है ना, सो -√30. ठीक है, सो आंसर इज थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन √30. ठीक है, तो आप देखो मतलब बेसिक वेक्टर का ही सब कुछ चल रहा है. क्या क्या ऐड हो रहा है कि नॉर्मल वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, ग्रेड कैसे कैलकुलेट करना है ना, डाइवर्जेंस कैसे कैलकुलेट करना है, ये चीज़ें बस इसमें ऐड किया. अदरवाइज बेसिक वेक्टर पे ही सारी चीज़ें कैलकुलेट हो रही है. सेकंड क्वेश्चन इज ऑल्सो सिमिलर, बट यहाँ पे डेल फाई 1 आपको कैलकुलेट करना है. सो इफ टू सर्फेसेस आर ऑर्थोगोनल एट 1 1 1, देन ए इज इक्वल टू व्हाट? सो ऑर्थोगोनल मीन्स व्हाट? Orthogonal means what? The angle is 90 degree, है ना. The angle between their normals is 90 degree. Okay, so orthogonal means the angle between the normals at point of intersection is 90 degree. Okay, now so just calculate the normal to the first surface del phi 1. This is the normal to the first surface. कैसे कैलकुलेट होता है del phi 1? करना क्या है, इसको एक्सेट इंटू आई बार प्लस y से डिफरेंशिएट करो, z से डिफरेंशिएट करो. ठीक है, एंड देन जस्ट कैलकुलेट एट 1 1 1. सो del phi 1 at 1 1 1. So which is equal to I bar plus J bar plus K bar. Calculate second. 1 minute. So calculate second. So del phi 2. So differentiate this with respect to x. That is 2x I bar plus 2ay J bar plus 2z K bar. ठीक है, and del phi 2 at 1 1 1 is equal to I bar plus 2a J bar plus 2 K bar. Now so and what we know is the angle between these two vectors is 90 degrees. So if I denote this as my A bar, if I denote this vector my B bar,
So what we know that, what we have, yes, क्या लिखना है आगे, इन दोनों में 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या होगा, Dot Dot product zero. product 0. वेरी गुड, देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0, ठीक है, एंड दैट इंप्लाइज डॉट प्रोडक्ट आपको कैसे लेना है, आई का आई के साथ प्रोडक्ट विच इज 1, जे का जे के साथ प्रोडक्ट विच इज 2a, के का के साथ प्रोडक्ट विच इज जस्ट 2 इक्वल टू 0, सो दैट इंप्लाइज ए इज रॉन्ग आ रहा है, क्या हो गया, सर वो Sir, वो टू आई चाहिए। two -2 आंसर है सर. second equation में. सेकंड में क्या हो रहा है, फर्स्ट टर्म 2 पाहिजे. फर्स्ट टर्म 2 2 पाहिजे. i 2 i चाहिए. 2x in the i cap है ना. 2x, हाँ, सोचो कि कहीं पे तो रॉन्ग आ रहा है, ये सारे 2 आ रहे हैं, ओके करेक्ट बोला था आपने, -2 ही आंसर आ रहा है, या सो 4 -2, ठीक है, ओके, सो इज इट ओवर और नॉट, ओके, सो हियर वी हैव ऑल द क्वेश्चंस ऑन दिस पार्ट, ये मैंने ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए ऐड किया कि एटलीस्ट थोड़ा बहुत आपको भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि वेक्टर के क्वेश्चन ट्रिवियल है, बट इन एवरी एग्जाम्पल सिंस द आइडिया इज डिफरेंट, तो उसके लिए आपको थोड़ा बहुत वर्कआउट करना होगा, ठीक है, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन मैं निराली से ले रहा हूँ, ओके, सो अभी निराली के कुछ ज़्यादा आपको प्रिपरेशन में टाइम वेस्ट नहीं करना है, ओके, ट्राई टू फोकस मोर ऑन दी अदर एग्जाम्पल्स, तो वो एक लिंक मैंने आपसे शेयर की थी, उसमें जो SPPU के क्वेश्चन से विच आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, वो क्वेश्चंस जो भी बाकी अदर PDF आपको दिखाई दे रही है, उसमें वेक्टर के जितने भी क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्राई टू सॉल्व दोज क्वेश्चन, और जो भी नहीं आपको सॉल्व हो रहा है ना, आप वो मुझे शेयर करो, ठीक है, तो in this way also, in this way only you have to prepare for the final exam, okay, yeah, and now we'll start the next topic, ठीक है, तो आज के लेक्चर में भी डेफिनेशन होगी, so but before that let me give some remarks about the vectors, okay, ये रिमार्क ऑलरेडी हमने देखा है, so vector, so this is in general a vector in the direction of this line, this is the equation of straight line, so what is that vector, a into I bar plus b into j bar plus c into k bar, ये रिजल्ट हमने ऑलरेडी देखा है, ठीक है, नेक्स्ट, so if this is the equation of one point on the curve, then what is equation of that curve, तो कर्व का इक्वेशन क्या होता है, r bar is equal to x into I bar, y into j bar, z into k bar, and the tangent vector to this curve is actually dr bar by dt, इसके ऊपर भी हमने एक क्वेश्चन लिया था, ठीक है, सो दिस इज अगेन यू कैन सी द रिवीजन ऑफ ऑल दोज रिजल्ट्स, ठीक है, नेक्स्ट, तो इस फॉर्म में अगर इक्वेशन आ जाता है तो आपको आर बार लिखना है, उसका डेरिवेटिव लेने के बाद आपको टेंजेंट वेक्टर मिल जाएगा, नेक्स्ट इज नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, तो ये हमने बहुत बार देखा है अभी, डेल फाई एट पॉइंट पी गिव्स यू नॉर्मल वेक्टर एट पॉइंट पी, ठीक है, सरफेस को नॉर्मल आपको दे रहा है, नेक्स्ट क्या था, अ वेक्टर विच इज इक्वली इंक्लाइन विद ऑल 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि एक फाइंड अ वेक्टर विच पासिंग थ्रू अ पॉइंट 1 1 1, इतना याद रखो, दिस इज द वेक्टर विच इज इक्वली इंक्लाइन विद ऑल कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, सो एंड द करस्पॉन्डिंग यूनिट वेक्टर इज just divide it by its modulus, 1 by root 3 1 by root 3 1 by root 3, that is the unit vector along this line, ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट मुझे अभी आगे चाहिए, या ऑलरेडी हमने इसके ऊपर क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, ठीक है, a vector along this line, tangent vector for this, normal vector to a surface phi, and a vector which is equally inclined with all coordinate axes, ठीक है, now we are ready to define the next concept which is directional derivative, ठीक है, so directional derivative of a scalar point function, मतलब phi का चल रहा है, phi के ऊपर सब कुछ चल रहा है, so directional derivative of this phi in the direction of some other vector is u bar is actually a component of del phi, is actually a component of del phi in the direction of u bar, मैं आपको ये ग्राफिकली बोलता हूँ ये क्या, ठीक है, so what is the definition, is actually a component of del phi in the direction of u bar, I will show you before going to this definition, okay, पहले मैं एक ग्राफ से आपको दिखाता हूँ कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, फाई एक सरफेस था, दिस इज योर फाई सरफेस जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, हाँ, एंड व्हाट इज द डेल फाई, डेल फाई आपको पता है, ये यहाँ पे आप इमेजिन करो, दिस इज योर डेल फाई, डेल फाई क्या होता है, डेल फाई इज अ नॉर्मल वेक्टर टू दिस सरफेस फाई एट सम पॉइंट से पी, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया है, सो द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई अलोंग अ वेक्टर यू बार, आपको क्या याद रखना है, कैलकुलेट क्या करना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव
ऑफ phi along वेक्टर u बार. ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करना है? डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ phi along a vector u bar. So what is that? So it is actually a component of del phi. ठीक है, so a component of del phi along u bar. So just draw perpendicular here. Okay, I think that animation is there. ठीक है, so just draw perpendicular from this on this u bar. ठीक है, so ये जो भी कंपोनेंट मिल रहा है, ये जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है ना, दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ phi. दिस इज द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ phi. ये जो भी वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रही है, दिस इज द स्केलर वैल्यू. ओके, इट्स अ कंपोनेंट और इट्स अ लेंथ ऑफ दैट वेक्टर, यू कैन से. So it's a directional derivative of phi along vector u bar. That is calculated using this formula. Del phi dot product with a cap or u cap. Here you can assume u cap. ठीक है, so directional derivative of phi along vector u bar is actually defined as del phi dot product with u cap. Is this clear or not? इतना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है. डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ phi along a vector u bar, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर आप एक सरफेस लेते हो, phi सरफेस, ठीक है, एंड नाउ इफ आई टेक अ नॉर्मल वेक्टर टू दिस phi सरफेस को एक नॉर्मल वेक्टर कंसिडर करो एट पॉइंट p. सो दिस इज माय नॉर्मल वेक्टर, वी जनरली डिनोट दिस बाय del phi. नाउ कंसिडर एनी अदर वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इटसेल्फ. ठीक है, कंसिडर एनी अदर वेक्टर फ्रॉम दिस पॉइंट इटसेल्फ, कोई भी एक वेक्टर. सपोज दिस वेक्टर इज u bar. ओके, आपको क्या करना है? व्हाट वी हैव टू फाइंड हियर, फाइंड कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर. सो फाइंड कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर अलोंग u bar. अलोंग u bar मतलब सिंपली क्या होता है? कंपोनेंट का भी मीनिंग क्या होता है? इसका प्रोजेक्शन लेना u bar के ऊपर. जिनको इस लैंग्वेज में समझ में आता है आप ऐसे याद रखो. ये जो वेक्टर है del phi, इसका प्रोजेक्शन आपको u bar के अलोंग कैलकुलेट करना है. u bar लाइन के ऊपर आपको प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है. एंड वॉट एवर लेंथ इज देयर, दैट इज डिफाइंड बाय, ये जो भी यहाँ पे लेंथ आपको दिखाई दे रही है, दिस इज डिफाइंड बाय डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ phi अलोंग अ वेक्टर u bar. एंड इट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग del phi डॉट u cap. समझ में आ रहा है कि क्या कैलकुलेट कर रहे हो आप? आप बस del phi का प्रोजेक्शन कैलकुलेट कर रहे हो किसी अदर वेक्टर के अलोंग. Here we just find projection of del phi on vector u bar. Projection of del phi on vector u bar. Is this clear? Clear or not? Clear or not? Yes or no? क्या कर रहे हो तो समझ में आ रहा है? All of you, are you getting this or not? कि आप यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हो? Yes? Tell me yes or no. नहीं समझ में आ रहा तो आप नो बोलो ना, इसमें क्या है? यस, आपको मीनिंग समझ में आ रहा है डायरेक्शनल डेरिवेटिव का? इट्स अ सिंपली प्रोजेक्शन ऑफ del phi along वेक्टर u bar. ठीक है, अब इसका प्रूफ मैं आपको नहीं दे रहा हूं, बट इट इज देयर इन पीपीटी आल्सो. ये that value is y del phi into u bar. That proof is there in PPT itself. इसका प्रूफ PPT में है. ओके, बट इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम ऑन दैट पार्ट, ये आपने ऑलरेडी देखा है 12th में. ओके, आई कैन रिलेट डायरेक्टली दिस पार्ट विद योर 12th वेक्टर अलजेब्रा. ये आपने ऑलरेडी प्रोजेक्शन कैसे कैलकुलेट करनी है पार्ट आपने ऑलरेडी 12th में देखा है. ओके, मैं आपको रिवाइज करके देता हूँ. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज प्रोजेक्शन ऑफ, इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. एनीवन, प्रोजेक्शन ऑफ ए बार on b bar. Can anyone tell me what is formula for this? ये पता होगा आपको 100%. ये सीईटी में तो बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं. यस, एनीवन? थोड़ा बहुत तो याद आ रहा है कि a बार का प्रोजेक्शन b बार के ऊपर कैलकुलेट करना है. सो व्हाट इज दैट फॉर्मूला? यस, एनीवन? कैन यू ट्राई व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर प्रोजेक्शन ऑफ a बार ऑन b बार? अरे have you Sir, vector? हाँ, yes. a bar dot b unit vector. a बार डॉट बी यूनिट वेक्टर. ठीक है, करेक्ट. या सिंपली आपने ऐसे भी देखा होगा फॉर्मूला प्रिपेयर करते समय, a बार डॉट बी बार अपॉन बी बार. सो इट्स नथिंग बट a बार डॉट विद यू बी कैप. ठीक, वही सब कुछ चल रहा है, वही है यहाँ पे भी. आप a बार का प्रोजेक्शन नहीं ले रहे हो, आप एक phi सरफेस ले रहे हो.
फाई सरफेस को नॉर्मल कैलकुलेट कर रहे हो, उस नॉर्मल का प्रोजेक्शन ले रहे हो किसी अदर वेक्टर के ऊपर, दैट इज नथिंग बट अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव. इज इट क्लियर नाउ? इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी यस और नो. समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो मैं एक और एंगल से एक्सप्लेन कर. Yes, sir. क्योंकि Yes, sir. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कैलकुलेशन करो और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या इसमें हो रहा है. ठीक है, आपको एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो आइडिया होनी चाहिए कि आप उसमें क्या कर रहे हो, बेसिकली क्या यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हो थोड़ा तो. क्योंकि ये वेक्टर आप यू कैन इजीली इमेजिन ऑल दिस थिंग्स. आपको दिखाई दे रहा है कि वहाँ पे क्या कैलकुलेशन हो रहा है. ठीक है, सो द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज सिंपली द प्रोजेक्शन ऑफ डेल फाई along a vector u bar, and it is calculated using the formula del phi p at point p into dot product with u cap. ठीक है, ओके. अभी एक और रिजल्ट है नीचे. रिजल्ट क्या है? एज अ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज मैक्सिमम इन इट्स ओन डायरेक्शन, देयरफॉर डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज मैक्सिमम इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई ओनली. ओके, अब इसका मीनिंग मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या है ये इसी डायग्राम में. उनका क्या कहना है कि चलो del phi along a vector u bar, this is nothing but a directional derivative. ठीक है, अभी मुझे क्या चाहिए? दिस डायरेक्शनल, आई वांट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डायरेक्शनल डेरिवेटिव. फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ. आई वांट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डायरेक्शनल डेरिवेटिव. ठीक है, आप डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करें मतलब आप ये लेंथ कैलकुलेट करें. यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया ना, ये लेंथ आप यहाँ पे कैलकुलेट करें. सो कैन एनीवन टेल मी? हाँ, अभी आपको दिखाई दे रहा है ये जो हाईलाइट मैंने किया ना, ये पार्ट. रेड कलर अगेन. दिस इज द वैल्यू ऑफ ये डायरेक्शनल डेरिवेटिव. ये पार्ट आप कैलकुलेट करें. मुझे बस आपसे ये आंसर चाहिए कि ये वैल्यू कौन से डायरेक्शन में मैक्सिमम होगी. इन विच डायरेक्शन दिस वैल्यू इज मैक्सिमम? हाँ, del phi. डेल फाई इटसेल्फ. क्योंकि जैसे जैसे आप नीचे आते हो ना, जैसे जैसे आप नीचे आते हो वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जा रही है. ठीक है, सो व्हेन यू कैलकुलेट दिस वैल्यू along a vector del phi itself, you will get a maximum value of directional derivative. इतना सिंपल प्रूफ है. ठीक है, so what is that statement? So this del phi is a maximum in the direction of del phi only. Okay, and its maximum value calculated by using the formula modulus of del phi. ये आपको पता ही है. Modulus gives you the magnitude of that vector. ठीक है, so this is all about directional derivative. इतना ही आपको क्लियरली याद रखना है, the meaning of directional derivative. Directional derivative की definition, it's a del phi dot product with u cap. U is the vector which is given in the example, तो वो आपको calculate नहीं करना है. Next thing is what? In which direction the value of directional derivative is maximum. तो उसका आंसर क्या है? The value of directional derivative is maximum in the direction of del phi itself. del phi के डायरेक्शन में आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलती है. सो सिंपली डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला क्या होगा कि डेल फाई कैलकुलेट करो डेल फाई के डायरेक्शन में, बट ये क्या लेना है? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डेल फाई. ओके, सो विल टेक सम एग्जांपल. तो ये मैथमेटिकल पार्ट आपका क्लियर हो जाएगा. या ओके, विल टेक फ्यू एग्जांपल एंड देन विल स्टॉप. द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन एट पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ यू बार इज सिंपली प्रोजेक्शन ऑफ डेल फाई at point P dot product with u cap. So which option is correct? Del phi dot product with u cap. Yeah, C option is correct. Next, magnitude of maximum directional derivative. Directional derivative maximum कहाँ पे आता है? कौन से डायरेक्शन में? Okay, directional derivative maximum कहाँ पे आता है? In the direction of del phi itself. Directional derivative की maximum value del phi के डायरेक्शन में आती है. Okay, and del phi का magnitude क्या है? Modulus of del phi. So this is the maximum value of directional derivative. ठीक है, आपको पता है किस, अगर आपको ए वेक्टर का प्रोजेक्शन लेना है बी वेक्टर के ऊपर, तो ये प्रोजेक्शन मैक्सिमम कहाँ पे होगा? ए वेक्टर पे ही होगा ना. मतलब ए वेक्टर का, ये आपका ए वेक्टर है, दिस इज योर बी वेक्टर समवेयर हियर. ठीक है, तो जैसे आप प्रोजेक्शन लेते जा रहे हो ऐसे अलग अलग लाइन पे आपका प्रोजेक्शन मिलेगा. ठीक है, बट व्हेन यू कंसिडर अ लाइन अलॉन्ग ए बार इटसेल्फ, तो ए बार का जो मॉडुलस है दैट इज योर प्रोजेक्शन. ए बार का जो मॉडुलस है दैट इज योर प्रोजेक्शन. ठीक है, तो वो सिमिलर वेक्टर में हमेशा मैक्सिमम वैल्यू देगा. नेक्स्ट इज मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ स्केलर पॉइंट फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इन द डायरेक्शन ऑफ, यस, इसका आंसर क्या है? Normal vector. नॉर्मल वेक्टर. ओके, इन द डायरेक्शन ऑफ डेल फाई इटसेल्फ. बट डेल फाई क्या होता है? नॉर्मल वेक्टर होता है. सो नॉर्मल वेक्टर. ओके, हाँ,
तो यहाँ पे आप देखो फाई गिवन है, डेल फाई का कैलकुलेशन भी गिवन है, आपको क्या करना है, वैल्यू ऑफ मैक्सिमल डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो दी मैक्सिमल डायरेक्शनल डेरिवेटिव की वैल्यू जो है ना, उसका फॉर्मूला क्या है, इट इज जस्ट द मॉडुलस ऑफ डेल फाई, ठीक है। सो विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इसका मॉडुलस लेना है आपको 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो 9 प्लस 1 10 प्लस 1 विच इज 11, सो आंसर इज अंडर रूट ऑफ 11, ठीक है। नेक्स्ट डेल आर कैलकुलेट करना है, तो ये शायद हो चुका है, ये क्वेश्चन हमने लिया है कंप्लीट, सो अभी स्किप दिस। नेक्स्ट फाई इज इक्वल टू दिस डेल फाई डॉट प्रोडक्ट विद ए कैप, इसका मीनिंग क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। सो कैलकुलेट, अभी आपको मैं केस में कैलकुलेट ही करके दे रहा हूँ, ओके। सो फर्स्ट कैलकुलेट डेल फाई, इसकी डेफिनेशन क्या है, फाई को एक्स से डिफरेंशिएट करो इंटू आई बार, वाई से डिफरेंशिएट करो इंटू जे बार, जेड से डिफरेंशिएट करो इंटू के बार, क्योंकि डेरिवेटिव 1 1 1 ही आ रहा है। और फिर क्या करना है, जो नेक्स्ट वेक्टर है उसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करो। सो ए कैप इज ए बार अपॉन मॉडुलस ऑफ ए बार विच इज इक्वल टू आई बार जे बार के बार अपॉन अंडर रूट ऑफ 3। नाउ टेक अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर, सो डेल फाई डॉट प्रोडक्ट विद ए कैप। तो आई बार का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे आई बार का कोएफिशिएंट 1/√3 है, सेकंड में भी 1 इंटू 1/√3, थर्ड में भी 1 इंटू 1/√3, so your final answer is 3/√3, and what is 3/√3? Just a root, ठीक है। So in this way we actually calculate directional derivative of this function phi along a vector a bar। यहाँ पे पॉइंट भी गिवन होता है, बट यहाँ पे उन्होंने नहीं दिया है, ओके। पॉइंट भी गिवन होता है, आपको मैं दिखाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन में होगा, ओके। हियर यू कैन सी अगेन, विल टेक वन मोर एग्जांपल। नेक्स्ट में भी क्या करना है, फाइंड अ डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इसका आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है एट अ पॉइंट दिस इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला इज डेल फाई, जिस पॉइंट पे करना है वो पॉइंट डॉट प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर ऑफ सेकंड वेक्टर। सारी चीजें कैलकुलेट करो, ये आपका फाइनल आंसर है। फर्स्ट कैलकुलेट डेल फाई, ओके। तो डेल फाई कैसे कैलकुलेट होगा, फाई को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज 4x इंटू आई बार, with respect to y 6y, j bar with respect to z 2z, k bar। now calculate this del phi at point 213, तो क्या मिलेगा आपको, 8i प्लस 6j प्लस 6k bar। now next calculate u cap which is u bar upon modulus of u bar which is equal to I bar minus 2j bar plus 2k bar divided by modulus of this which is 1 plus 4 plus 4 which is 9, ठीक है। so that value is 1/3 I bar minus 2/3 j bar plus 2/3 into k bar। now take a dot product, so क्या होगा डॉट प्रोडक्ट, I का कोएफिशिएंट 8, सेकंड में I का कोएफिशिएंट 1/3 प्लस फर्स्ट में I का कोएफिशिएंट 6, सेकंड सॉरी J का, फर्स्ट में J का, सेकंड में J का माइनस 2/3, नेक्स्ट 6 2/3। बोलो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 6 माइनस 2/3 6 प्लस 2/3, सो ऑप्शन इज 8/3। सर 8 ए ऑप्शन, ये ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है, 8/3। अब देखो ये सारा कैलकुलेशन आपको क्विकली करना है एग्जाम में, क्योंकि यही क्वेश्चन आने वाले हैं आपको 110%, ओके। वैल्यू अलग अलग होगी बट मीनिंग मतलब फॉर्मेट यही होगा क्वेश्चन का, ओके। नाउ इन लास्ट 2 minutes, ओके, आई विल गिव यू दिस एग्जांपल फॉर यू, आप कैलकुलेट करके मुझे बोलो। एक तो क्वेश्चन में आपको कॉन्फिडेंस से करना ही होगा। सो हियर वी हैव गिवन फाई इज इक्वल टू e⁻²x cos ऑफ yz, डू इट एंड टेल मी द फाइनल आंसर। इसका डेल फाई कैलकुलेट करो, पॉइंट नहीं दिया है उन्होंने, ओके, ओरिजिन दिया, सॉरी, ओके, पॉइंट। सो डेल फाई कैलकुलेट करो एट ओरिजिन, ठीक है। यू कैप भी कैलकुलेट करो, दैट इज u bar अपॉन मॉडुलस ऑफ u bar, देन जस्ट टेक अ डॉट प्रोडक्ट, सो डेल फाई डॉट विद u cap is your final answer, do it and tell me that final answer। एक आप करो तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, क्योंकि आगे की क्वेश्चन ट्रिवियल है फिर, क्योंकि एक भी क्वेश्चन सर ऑप्शन बी है सर शायद 2/√3।
अदर स्टूडेंट्स डू इट। और मुझे आपका आंसर बोला बी आता तो फिर से वही बोलो, बट टेल मी B. B. ऑप्शन बी इज द आंसर। You can work on this. Okay. So I think yeah. So for this question we need some time. Okay. So we'll stop here today.